The question is, a crystalline solid of a pure substance has face-centered cubic structure with a cell edge of 400 picometers. If the density of the substance in the crystal is 8 grams per centimeter cube, then the number of atoms present in 256 grams of the crystal is n into 10 raised to the power 24. The value of n is that we have to calculate this n. So the density of the crystal, it is given as rho is equals to Z into M upon Na into A cube, where this Z is the number of atoms in one unit cell, M is the molar mass of the substance, Na is the Avogadro number, and A cube is the volume of the unit cell. So it is given that this crystalline solid of a pure substance, it has face-centered cubic structure. So the value of Z can be calculated as, for FCC, face-centered cubic structure, the atoms which are present, they are at 8 corners of the cube and at 6 face centers. So it will be 8 into 1 by 8. This 1 by 8 is the contribution of an atom at the corner per unit cell, plus 6 into 1 by 2. And this 1 by 2 is the contribution of the atom at the face center per unit cell. So the value of Z will be 1 plus 3, it will be 4. So 4 atoms are present in one unit cell. So if we put the values here in this formula, so it will be rho, which is density, it is given 8 grams per centimeter cube. So it will be 8 grams per centimeter cube is equals to Z, which we have calculated 4, into the molar mass, which is not given to us. We have to calculate this, divided by Na, which is Avogadro number. So it is 6.022 into 10 raised to the power 23 per mole, into A cube. A is the edge length, which is given 400 picometers. So if we convert it in centimeters, so it will be 400 into 10 raised to the power minus 10 centimeter cube. So we have to calculate this M. So it will be equal to 8 gram per centimeter cube into 6.022 into 10 raised to the power 23 mole inverse into 400 cube into 10 raised to the power minus 30 centimeter cube divided by 4. So from here, as we can see, the centimeter raised to the power minus 3, it will be cancelled out from here, and we'll get the molar mass in grams per mole. So if we solve this, we'll get molar mass is equals to 77.08 gram per mole. So now we have to calculate the number of atoms which are present in 256 grams. So as we know that in 1 mole of the substance, it consists of 6.022 into 10 raised to the power 23 atoms. So as in 1 mole of the substance, it consists of 77.08 grams. So in 77.08 grams of the substance, it will consist of 6.022 into 10 raised to the power 23 atoms only. Now we have to calculate in 256 grams. So in 256 grams of substance, it will be 6.022 into 10 raised to the power 23 divided by 77.08 into 256 atoms. So it will be equal to 2 into 10 raised to the power 24 atoms, which means the number of atoms which are present in 256 gram of the crystal, it is 2 into 10 raised to the power 24. So the value of n, it will be 2. हेलो, इस क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि द नंबर ऑफ हेक्सागोनल फेसेस दैट आर प्रेजेंट इन ट्रैंकुलेटेड ऑक्टाहेड्रॉन. तो हमें बताना कि नंबर ऑफ हेक्सागोनल फेसेस कितने प्रेजेंट है हमारे ट्रंकुलेटेड
ऑक्टाहेड्रॉन में, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो है हेक्सागोनल फेसेस देखते हैं कौन से होते हैं। तो हेक्सागोनल फेसेस मतलब कि उनका जो स्ट्रक्चर हो वो हेक्सागोनल हो, ठीक है। तो मतलब 6 मैंग ऐसा उनका फेस हो, ठीक है। तो ये बताने कि ट्रैंकुलर ऑक्टाहेड्रॉन में ऐसे कितने तरह के फेसेस हैं, ठीक है। तो जो हमारा ट्रैंकुलर ऑक्टाहेड्रॉन है उसका शेप कैसा होता है, उसका शेप हमारा होता है इस तरह का, ठीक है। तो अगर इसमें हम नंबर ऑफ कैलकुलेट करें तो इस तरह के शेप कितने हैं, तो इसमें कितने हैं, एक ये होगा, ठीक है, ऊपर वाला, एक ये नीचे वाला, ठीक है, और एक हमारा होगा ये थर्ड, ठीक है, ये फोर्थ, ये हमारा फिफ्थ, ठीक है, ये हमारा सिक्स्थ, ये हमारा जो है सेवन्थ, ये पीछे वाला, और ये हमारा एट्थ। तो इसमें हमारे कितने हो रहे हैं, 8 नंबर ऑफ यहाँ पे हेक्सागोनल फेस आ रहे हैं हमारे, हेक्सागोनल फेस इन ट्रंकुलेटेड ऑक्टाहेड्रल में, ठीक है। तो हमें यही बताना था कि इसमें कितने हमारे फेस आ रहे हैं। तो अगर हम ये स्ट्रक्चर बना पाएंगे तो हम इजीली बता सकते हैं कि हमारा जो है कितने इसमें नंबर ऑफ हेक्सागोनल फेस है ट्रंकुलेटेड ऑक्टाहेड्रल में। तो इसमें हमारा आंसर क्या आया, ऑप्शन 8। तो मैं आशा करता हूँ आपको कौन समझ में आया होगा। धन्यवाद। The question is, silver has density 10.5 gram per centimeter cube. The number of silver atoms on a surface area of 10 raised to the power minus 12 meter square can be expressed in scientific notation as y into 10 raised to the power x. The value of x is कि जो सिल्वर है यहाँ पर हमें गिवन है कि जो सिल्वर है उसकी डेंसिटी गिवन है, डेंसिटी ऑफ सिल्वर इज 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एंड गिवन है एक सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया 10 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 12 मीटर स्क्वायर। इसके अंदर जो नंबर ऑफ सिल्वर एटम्स है दैट आर y इंटू 10 रेज टू द पावर x। तो हमें यहाँ पर जो x की वैल्यू है, x की वैल्यू बतानी है क्या है। यहाँ पर हमें जो डेंसिटी गिवन है दैट इज 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एंड हमें पता है कि डेंसिटी इक्वल होता है टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास ऑफ सिल्वर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सिल्वर, इस तरह से आएगा। तो यहाँ पर हमें क्या गिवन है कि जो डेंसिटी है दैट इज 10.5 यूनिट इस तरह से लिख सकते हैं ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, मतलब यहाँ पर हम 1 भी लगा सकते हैं। इससे हमें मिला है दैट जो मास है, मास इज 10.5 ग्राम, मास ऑफ सिल्वर इज 10.5 ग्राम एंड वॉल्यूम ऑफ सिल्वर ली गई है 1 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पर हमारे पास वॉल्यूम आई है सेंटीमीटर क्यूब में एंड जो सरफेस एरिया गिवन है मीटर्स में गिवन है। तो हम यहाँ पर कन्वर्जन करेंगे यूजिंग द कन्वर्जन फैक्टर। कन्वर्जन फैक्टर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 रेज टू द पावर माइनस 2 मीटर। ये होता है 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर का क्यूब लगाना है, हमें चाहिए 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे को क्यूब कर देंगे, बोथ साइड्स को हम क्यूब कर देंगे। तो यहाँ में मिल जाएगा दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्विवेलेंट है टू 10 रेज टू द पावर, ये मल्टीप्लाई हो जाएगी पार्ट्स, तो यहाँ आ जाएगा 6 मीटर, मीटर की पावर भी आ जाएगी क्यूब। तो यहाँ पर हमें मिल गया है जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ सिल्वर इज 10 रेज टू द पावर माइनस 6 मीटर क्यूब। यहाँ पर हमारे पास मास है, तो मास से हम कैलकुलेट कर सकते हैं नंबर ऑफ एटम्स, क्योंकि हमें नंबर ऑफ एटम्स ही बताने हैं, नंबर ऑफ सिल्वर एटम्स बताने हैं। मास गिवन है हमें एंड मोलर मास है 108 ग्राम पर मोल एंड एटॉमिक वेट है 108 ग्राम पर मोल। तो नंबर ऑफ मोल्स जो है अगर सिल्वर के देखें तो इक्वल होता है टू मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट ऑफ सिल्वर एंड नंबर ऑफ मोल्स इक्वल होता है टू नंबर ऑफ एटम्स। ये एन से रिप्रेजेंट करते हैं, एन होता है नंबर ऑफ एटम्स, इस केस में होंगे नंबर ऑफ सिल्वर एटम्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स। एवोगैड्रो नंबर, इट इज एवोगैड्रो नंबर जो कि इक्वल होता है टू 6.022 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 23। ये एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू है। अब हमें डिटरमाइन करना है यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ सिल्वर एटम्स डिटरमाइन करने हैं। हमारे पास मास ऑफ Ag गिवन है, एटॉमिक वेट भी गिवन है एंड ये तो कांस्टेंट है। तो हम यहाँ पर n की वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हैं, शफल करेंगे इक्वेशन को तो n आ जाएगा इक्वल टू मास ऑफ सिल्वर डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट ऑफ सिल्वर इनटू एवोगैड्रो नंबर ऑफ
पार्टिकल्स। तो यहाँ पर आ जाएगा मास हमें गिवन है 10.5 ग्राम, एटॉमिक वेट है 108 ग्राम पर मोल, एंड यहाँ पर है हमारे पास एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो कि होता है एटम्स। यहाँ पर इस केस में एटम है बिकॉज पार्टिकल्स पर मोल होता है, इट इज एटम इन 1 मोल और पर मोल। तो यहाँ पर इस तरह से आएगा 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स या फिर सिल्वर एटम्स पर मोल। यहाँ पर यूनिट कैंसल आउट हो जाएंगे, यहाँ पर ग्राम से ग्राम यूनिट कैंसल आउट हो जाएगा, ग्राम से ग्राम यूनिट कैंसल आउट हो गया, एंड यहाँ पर है पर मोल तो ये ऊपर जाके मोल हो जाएगा, एंड दिस इज पर मोल तो ये कैंसल आउट हो जाएगा, एंड यहाँ पर आ गया एटम्स। हमें यही बताना था कि नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, नंबर ऑफ सिल्वर एटम्स, इसको एजी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ सिल्वर एटम्स की बात हो रही है। तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 5.85 इंटू 10⁻22 सिल्वर एटम्स। ये हमें मिल गए हैं सिल्वर एटम्स इन द गिवन वॉल्यूम 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। डेंसिटी से ही हमने मास एंड वॉल्यूम का रिलेशन लिया था, वॉल्यूम अगर ये है तो मास को यूज करके हमने नंबर ऑफ एटम्स निकाल लिए हैं, मतलब हमें यहाँ पर वॉल्यूम के अंदर मिल गया है कि 10⁻⁻6 मीटर क्यूब के अंदर है 5.85 इंटू 10⁻22 सिल्वर एटम्स। बट हमें डिटरमाइन करना है नंबर ऑफ एटम्स इन 10⁻⁻12 मीटर स्क्वायर। अगर इसे मीटर स्क्वायर करना है, यहाँ पर पावर स्क्वायर करनी है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, पावर लगा देंगे। यहाँ पर 10⁻⁻6 मीटर क्यूब 5.85 इंटू 10⁻22 सिल्वर एटम्स। अगर हमें यहाँ पर मीटर की पावर चेंज करनी है तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम पावर लगाएंगे 2/3, तो यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, पावर आ जाएगी 2। तो हमें यहाँ पर भी यही करना पड़ेगा, 2/3 लगाना पड़ेगा पावर, बोथ साइड्स में पावर लगाएंगे। तो यहाँ पर आएगा 10⁻⁻6 इंटू 2/3 एंड मीटर क्यूब इंटू 2/3, इस तरह से पावर आएगी। तो 3 से 6 कैंसिल आउट होगा, नेक्स्ट स्टेप में मिलेगा 10⁻⁻4 एंड मीटर स्क्वायर, ये मिल जाएगा। एंड यहाँ पर हमें मिलेगा 5.85 इंटू 10⁻22 की पावर 2/3 में हमें मिल जाएगा 1.5 इंटू 10⁻15 सिल्वर एटम्स। यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स जो आए हैं दैट इज 1.5 इंटू 10⁻15 सिल्वर एटम्स। यहाँ पर हमें 10⁻⁻4 में मिल गया, हमें 10⁻⁻12 में निकालने हैं। तो यहाँ पर पहले हम 1 मीटर स्क्वायर में निकाल सकते हैं, 10⁻⁻4 को नीचे भेज दिया, तो 1.5 इंटू 10⁻15 डिवाइडेड बाय 10⁻⁻4। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या लेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड्स में 10⁻⁻12, ये टर्म मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड। तो यहाँ पर इतना मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10⁻⁻12 इंटू 1.5 इंटू 10⁻15 डिवाइडेड बाय 10⁻⁻4 आ गया, इतने सिल्वर एटम्स है। तो यहाँ पर 1.5 तो है, यहाँ पर क्या है, अगर यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में बेस सेम है तो पावर ऐड होती है, तो -12 + 15 हो जाएगा, एंड बेस सेम है एंड यहाँ पर डिवीजन में है तो ये ऊपर आके माइनस हो जाएगा, तो माइनस एंड -4 होगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा माइनस माइनस की जगह प्लस। तो यहाँ पर पावर आएगी 1.5 इंटू 10⁻7 सिल्वर एटम्स। ये हमें मिल गए हैं इन 10⁻⁻12 मीटर स्क्वायर सरफेस एरिया में। तो यही हमें बताना था, हमें गिवन था इन द फॉर्म ऑफ y इंटू 10⁻x। यहाँ पर x की वैल्यू बतानी थी, कंपेयर करने पर हमें x की वैल्यू मिल गई है 7। हमें ये बताना था x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है यहाँ पर 7, x इज 7, हमारा आंसर है 7। थैंक यू।